Good morning, students. Today we are going to learn about the mole concept. Definition of mole is what? A mole is a unit of measurement used to measure the amount of any fundamental entity like atoms, molecules, ions present in a substance. For example, suppose students, for example, first we are taking the real life examples. Suppose if you are purchasing the bananas, then how you are purchasing bananas, like 1 dozen, 2 dozen, like that only. So what do you mean by 1 dozen? 1 dozen means 12 pieces of bananas. Okay, so that means what? Dozen is the measurement unit. Dozen is what here? Measurement unit. Distance we are measuring in what? Like in kilometer, meter, centimeter. Okay. The any goods we are measuring in kilogram, gram. Liquid we are measuring in liter, kiloliter, milliliter, like that only. Okay. So all these things are what? These are the different unit for the measurement. Okay, as we are measuring the physical quantities and we are having different units. Similarly, if I will ask you that in one glass of water, how many molecules are there, how many molecules of water are present there? If I will ask you that by showing any piece, that how many atoms are present there, okay, or how many ions are present there, or how many, like for example, suppose if I am taking a chalk piece, and I am asking you that how many particles are present in that chalk piece, then how we will measure this? How we will measure this? For measuring this, we use what? Mole. For measuring this, we use what? Mole. Okay. So that to measure the particles, to measure the atoms or molecules or ions, the unit which we use, that is called what? Mole. That is called mole. Okay. So a mole is very much similar to the concept of weight, as both help in understanding the amount of substance present. That means how much substances are, that how much it is what? Dense, or how many particles are there. That only. Okay. Then see, 1 mole equals to, okay, now see, so simply we can say that mole is what? Mole is nothing. It is a number. Mole is a number. Then 1 mole, the value of 1 mole is what? 1 mole equals to 6.022 into 10 to the power 23. Okay, so 1 mole is what? 6.022 into 10 to the power 23. It is also called Avogadro number. It is also called Avogadro number, and it is represented as an A. Then see here, if we suppose for example we are taking carbon atom, we are taking what? Carbon atom. So we know that in a carbon atom how many proton and neutrons are present here. So in a one carbon atom there is 6 protons and 6 neutrons. Okay, see here, this is the structure of carbon atom. In the nucleus what present there? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, कार्बन कोई भी आप एटम ले रहे हो तो कोई भी एटम के न्यूक्लियस होता है पहले. ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक, उसके बाद क्या आता है? इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं ना. देखो 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अभी इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिट है उसमें कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड देन आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1 2 3 4. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको फाइंड आउट करना है, अगर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मास ऑफ प्रोटॉन, सो यहाँ पे देखो, ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा है, ये आपका सिंपल, ये जो है एक सिंपल कार्बन का एटम है. क्या है? सिंपल एक कार्बन का एटम. ठीक है, अगर हम सिंपल एक एटम को देखते हैं तो एटम में कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 इंटू 10 to the power -24. मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1 sorry, mass of proton is 1.67 into 10 to the power -24 gram, and this is called 1 AMU.
ये जो आपका अमाउंट है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसी को हम बोलते हैं 1 AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है? 1.67 into 10⁻⁻24 gram, that is 1 AMU. Then see here, the atomic mass of carbon is what? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब अगर हमको किसी भी एटम का मास निकालना है तो हम क्या करते हैं? प्रोटॉन प्लस क्या करते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है। किसी भी एटम का मास निकालने के लिए उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब बेसिकली ऐसा होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली वी विल ऐड व्हाट? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 प्रोटॉन मास प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन्स का मास ऐड होगा, और क्या ऐड होगा? 6 न्यूट्रॉन्स का मास ऐड होगा। ये 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो यहाँ पे 12 इंटू क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये जो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, यहाँ से देखो इसी को हम बोलते हैं 1 AMU। तो यहाँ पे 12 इंटू क्या हो जाएगा? AMU। ठीक है। और देखो ये जो 12 AMU आया है, ये क्या चीज है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ये जो 12 AMU आया है, ये क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। सो सिंपली अगर आपके पास देखो, अगर 12 AMU क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन है, तो 1 AMU क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। ये जो 12 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो आपका 1 AMU क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक। चलो इतना हो गया। तो यहाँ से एक चीज आप ध्यान रखोगे कि 1 AMU क्या होता है? ये यहाँ से आप देख लो, 1 AMU, यहाँ पे 1 AMU होता है आपका 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे कि 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है आपका? 1 एटम ऑफ कार्बन है 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर अच्छा ये देखो एटम जो होता है ना, बहुत स्मॉल यूनिट होता है, बहुत स्मॉल। ठीक। तो अगर अब मुझे फाइंड आउट करना है, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास क्या होगा? एक सिंगल एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है? 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? अब एक चीज यहाँ पे देखो, 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो फिगर है दैट इज व्हाट? 1 मोल। ये जो वैल्यू है वो किसकी है? 1 मोल की। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 मोल, है ना? तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। So now we are trying to find out the mass of 1 mole of carbon atoms. तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएगा? देखो एक सिंगल एटम का मास कितना है? 12 इंटू दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 मोल की ये वैल्यू है, इससे हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको, है ना? ये 1 मोल की वैल्यू है, इससे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 12 ग्राम। क्या मिलेगा? ये जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 12 ग्राम। और ये जो 12 ग्राम आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। और इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। सो मोलर मास इक्वल्स टू व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास। चलो एक और एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन एटम का। तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटी यूनिट है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा 16, 8 + 8 16 इंटू प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻24, ठीक है, ग्राम। तो सिंपली एक चीज याद रखो, आपको किसी भी अगर यहाँ पे आप क्या चाहिए, आपको किसी एटम का अगर आपको क्या निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, उसके मास में आप जस्ट क्या ऐड कर दो, ग्राम। क्या ऐड कर दो वहाँ पे जी, ग्राम ऐड कर दो, वो बन जाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 U होता है, तो यहाँ पे U हटाओ और क्या लिख दो 16 ग्राम, ये बन जाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास। ओके, चलो अब आपकी बुक से थोड़ा सा सी दिस चार्ट। 1 mole of carbon atom, so 1 mole of carbon atom we can write as 1 mole. 1 mole means what? 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. 1 mole, the value of 1 mole is what? 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbons. Or we can write here 1 mole equals to what? 12 gram of carbon atoms. 12 gram, why I am saying you 12 gram? Because the atomic mass of carbon is what? 12 gram. So we can write here 12 gram also. That 12 gram is what? Gram atomic mass of carbon atom. Then similarly here 1 mole of hydrogen atom. 1 mole means what? Again 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये क्या है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, अगर आप इसका यहाँ पे क्या बता रहे हो ग्राम वेट, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, सो सिमिलरली हाइड्रोजन का देखो, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछेंगे तो जस्ट 1 मोल की वैल्यू पुट करनी है, देन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन का आपका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना होता है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैसे ही इसी के जैसे जैसे कार्बन और हमने हाइड्रोजन लिया है, अगर आपसे किसी भी पार्टिकल का पूछा जाए 1 मोल क्या है, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, या फिर उसका जो भी रिलेटिव मास है वो आप सॉरी रिलेटिव वेट है वो आपका आएगा पार्टिकल का, ठीक है। सो वैसे ये आपका किसके लिए था पार्टिकल, एटम्स के लिए। अगर मॉलिक्यूल्स का पूछेगा तो आपको सेम वही मॉलिक्यूल्स बताना है 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज द ग्राम एटॉमिक मास और वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। नाउ रिप्रेजेंटिंग वेट ऑफ सब्सटेंसेस इज मोल। आपको यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का निकालना है तो क्या करोगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये फॉर्मूलाज यूज होगा, ठीक। यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इज रिलेटेड टू moles as follows. The number of moles equals to number of particles upon एवोग्रेडो नंबर। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, अगर आपको मास दिया हुआ है तो आप मास अगर दिया है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, या फिर अगर आपको एवोग्रेडो नंबर से निकालने बोला है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोग्रेडो नंबर, ठीक। एग्जांपल देखो यहाँ पे 92 ग्राम ऑफ सोडियम, इसका हमको मोल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ मास कितना दिया है आपको 92 ग्राम, यहाँ पे सोडियम का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है 92 ग्राम, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट, सोडियम का वेट कितना होता है 23 ग्राम्स होता है, सोडियम का वेट कितना होता है 23 ग्राम्स, क्योंकि सोडियम में देखो 11 प्रोटॉन्स होते हैं 11 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसको ऐड करके उसने उसका जो वेट बताया है वो कितना बताया है 22 होता है, लेकिन 23 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है 23 ग्राम्स होता है। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास 92 अपॉन द ग्राम एटॉमिक वेट 23 कितना आएगा 4 मोल्स, ठीक। वैसे यहाँ पे देखो 36 ग्राम ऑफ वाटर का पूछा है, तो यहाँ पे मास कितना दिया है 36 ग्राम, ठीक है, और वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम। क्यों, वाटर किससे बना होता है H2O, है ना, वाटर क्या है H2O है, तो अगर H2O है तो यहाँ पे H का कितना हो जाएगा 1, कितने एटम से H के 2, तो 2 + 16 कितना होता है 8, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 2 + 16 कितना हो गया 8, है ना। अब उसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 मोल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपका पूछा है यहाँ पे
in 18.066 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इतने एटम्स में कितने मोल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, ये क्या है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मोल्स बनाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हो गया, एवोगाड्रो नंबर हमको मालूम है कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, डिवाइड कर देंगे, आंसर मिलेगा 3 मोल्स। ठीक है, फिर वहीं पे दिया आपको, ये आपका 1 मोल है ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा क्योंकि ये खुद ही 1 मोल है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया है, 1 मोल, एवोगाड्रो नंबर भी क्या होता है सेम, ठीक है, डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 मोल। देन यहाँ पे दिया है आपको 10 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे निकालने बोला है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मास कितना दिया आपको 10 ग्राम, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 28 ग्राम आएगा। नाइट्रोजन का कितना आएगा, देखो नाइट्रोजन का ना 14 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितना होता है 14, और यहाँ पे कितने, नाइट्रोजन का 14 होता है लेकिन नाइट्रोजन के एटम्स यहाँ पे कितने दिए हैं 2, है ना, 2 एटम्स दिए हैं, तो 2 एटम्स दिए हैं, तो यहाँ पे 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या निकलना है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा n इंटू n0, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेगा यहाँ से, देखो n इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू n0, सो n इक्वल्स टू, ये आपका जो n है वो हो जाएगा आपका मास अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू n0 अपॉन m, n की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये आपका n की जगह पे क्या करोगे आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू n इंटू n0, और ये स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट। इस फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मास कितना दिया 10 ग्राम, n0 कितना है आपका, n0 क्या है बेटा, एवोगाड्रो नंबर है, n क्या है एवोगाड्रो नंबर, n जो दिया है ये आपका क्या है यहाँ पे मास है, n क्या है यहाँ पे मास, ये m लिखना था n लिख दिया है। तो यहाँ पे ये जो n है वो आपका, सॉरी यहाँ पे आएगा ना n, यहाँ पे n कितना है 10 है, और n0 कितना है आपका 6.022 इंटू 10 to the power 23, और m कितना निकला है 28 ग्राम। इसको सॉल्व करने से n आपका आ जाएगा 2.15 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। ओके, सो नाउ हियर this is also what the same, just you read out this one, okay, so your chapter is finished here.